Hello, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic Introduction to Sociology. Our course name is Introduction to Sociology, and topic subtopic is scientific research, sociological research. Uh, First, we have to recall the previous lecture. What is the definition of sociology? So, what we learned from the previous lecture, sociology is the scientific study of human society. So please remember the most important and most emphasized word is what? Scientific. And sociology is marked as social science. So we have got 2 points. One thing is that sociology is a science, is a kind of science. The second thing is that sociology is the scientific study. So we have a question over it. What is scientific method and how these scientific method can be used in sociology? Auguste Comte presented the idea of sociology in 19th century. The one great school of thought, the positivism, scientism, the all theories is based on science. What is scientific research? uh, किसको हम साइंस के हैं किसको हम नॉन साइंस how we can differentiate between this one is a pseudo science non-science and this one is science. We have some scientific principle जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकें हमारी ऑब्जर्वेशन में आ जाए जिसको हम लेबोरेटरी में टेस्टिफाई कर लें और एक रिपीटेशन के बाद we will get the same result. 1,000 times we will do the same thing and we will get the same result. So this will become a theory. First we set the hypothesis कि ऐसा है या नहीं है और after verifying and testify we will get the some result. This is called the scientific approach or scientific method. और non science क्या है? I found that, I feel that, I think so, it might be, it's some metaphysical debate, it comes from some uh, custom and tradition, that some layman perspective are there over the key concept of sociology. But when we talk about that this subject is the scientific study, so we do research, we do scientific research. So how and in what manner we can conduct the research and what are the method of scientific research, then we are going to discuss in this lecture. So let's begin. First we have to keep understand the concept the sociological imagination. Sociological imagination क्या है कि हम एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं सोसाइटी में जैसे कि हम कहें कल्चर क्या है तो कल्चर को लेके एक परसेप्शन डेवलप है पोवर्टी क्या है क्राइम इज अनदर इशू सोशल इशू हमने कोई एक रिलेशनशिप कनेक्ट कर लिया है अपने इस ज़ाती तजर्बे से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को और सोसाइटी के साथ और हम समझते हैं ये पूरा सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है हम चीज़ों को रिसर्च में नहीं लेके जा रहे बल्कि हम उसको अपनी डीप इनसाइट से अंडरस्टैंड करें अलाउ अस टू गो बियॉन्ड पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि हमें अपने ज़ाती तजर्बे से बाहर निकलना होगा और ये ऐसी एबिलिटी है टू सी द सोसाइटी एज एन आउटसाइड वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड यू may correct this word rather than limited perspective and culture biases. तो ये जो हम बाइसनेस के साथ प्रीसपोजिशन के साथ जो जी रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके सोसाइटी के तो जो आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है नॉट नेसेसरी इज एन एक्सपीरियंस एज अ होल और इट माइट बी अ ट्रू. So sociological imagination क्या है? Imagination
is a relationship between the individual and ability to see the society as an outside world. And if we want to break the chain and go beyond the person experience, then you will be understand well. अब सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन यानी लेमैन पर्सपेक्टिव से बाहर निकलने के लिए व्हाट वी डू इफ वी वांट टू सी द रियलिटी, ये हमारे सामने ये रियलिटी अब है जो हम देखना चाहते हैं. सो हाउ वी कैन सी द रियलिटी? सो वी हैव मेनी पर्सपेक्टिव and different past sociologists have presented the different theories after doing the research. And if we want to start the new research, if we want to launch the current research work, so what kind of method we have? So if we want to see the reality, so we must filter out our perception, our layman concept, then we jump to the conclusion. If we jump to the conclusion so quickly without any research, without doing any efforts to collect the data, so this one is bias. This one is considered to be not science. This is a pseudoscience. So if we want to see the reality, we must follow the theory. We see the research method also. So we have to make the divide line between the sociology and the common sense. Because the common sense assumptions are usually based on very limited observation. 5 senses से हमने जो data receive किया, that's all, not all. Okay. ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं उसको हम परख नहीं पाते, हम सही से इवेल्युएट और जज नहीं कर पाते. और बहुत सी रिसर्च साइंटिफिक टूल्स के बगैर मुमकिन ही नहीं है. जो हमारे पांचों सेंसेस हैं वो उनकी भी एक लिमिटेशन है. तो ये प्रेमिसेस कि हम कॉमन सेंस की बेसिस पे देखेंगे, ये उसको एग्जामिन करना एक टिपिकल टास्क. तो सोशियोलॉजी क्या करती है? सोशियोलॉजी जो है वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करती है, और फिर एक रिसर्च के बाद वो कॉमन सेंस को पीछे छोड़ देती है. तो जब हम बात करते हैं थ्योरी का, तो थ्योरी ऐसे प्रेजेंट नहीं हो जाती. थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए आपने सर्वे किया होता है, आपने क्वेश्चन किया होता है, आपने लेबोरेटरी में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, आपने ऑब्जर्वेशन ड्राइव की होती है. देन यू विल बी राइट अप अ थ्योरी. और थ्योरी के साथ में कुछ असम्पशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि ये थ्योरी एप्लीकेबल है, मगर कब कब क्या कंडीशंस है. तो हमें डिफरेंस समझ आया कि इफ़ यू want to do a research, so you thinking like a sociologist. if so आपने sociological perspective scientific follow करना पड़ेगा, आपने लेमैन और कॉमन सेंस को प्रेफर नहीं देनी होगी, और जो कुछ दिख रहा है उसको एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है. तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये था कि आप दुनिया को देख रहे हैं ऐसे पर्सनल लाइफ साथ ही जो कुछ आपने अपने पर्सनल ओपिनियन दे दिए. देखिए, ओपिनियन इज नॉट अ नॉलेज. ओपिनियन इज नॉट अ नॉलेज. ओपिनियन जो है वो विजडम का हिस्सा नहीं होती. वो तो आपकी एक जाती राय है, और आप बायस भी हो सकते हो, आप इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट भी हो सकते हो. तो आप उसको रिलेट करते हो, फिर आप उसको रिसर्च करके फिर असल हकीकत तक पहुंचते हो. ये है सोशियोलॉजिस्ट का काम, कि वो ऐसा रिसर्चर इन सोशल मैटर्स, सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करता है, स्टडी करता है, और जितने भी बायसनेस हैं उससे बाहर निकलता है. Looking at the social life in that scientific and the systematic way, or looking that world beyond our perceptions and the meaning. ठीक है, ये सोशियोलॉजिस्ट का काम. थिंक लाइक अ रिसर्चर, थिंक लाइक अ. और अब हम कनेक्शन बनाते हैं कि सोशियोलॉजी और साइंस का आपस में क्या रिलेशन है. तो पहले तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस?
व्हाट इज साइंस? साइंस इल्म क्या है? यानी जानना, टू नो समथिंग, वो चीजें जो हिडन है। भाई आपके सर पे आइंस्टाइन के सर पे सेब गिरा तो भाई गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जिस दिन आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया, सॉरी न्यूटन ने डिस्कवर किया, तो उसी दिन से ऐसा हुआ क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता लगी हमें, कोpernicus रेवोल्यूशन आया और द अर्थ रोटेट अराउंड द सन। इसी तरह से गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देख के हमें स्टार्स के बारे में बताया, कॉस्मोलॉजिकल डिबेट्स ओपन हुई। तो ये सब उसी दिन से हुआ जिस दिन से बताया, ये सब कुछ पहले से था, ऐसे था। इसका मतलब क्या है? साइंस क्या करती है? साइंस जो है इज डिस्कवरिंग ऑफ द फैक्ट्स, दोज फैक्ट्स which are already there, those facts which are already existing there, just we have to be find out. साइंस क्या है? साइंस उस राज पे से पर्दाफाश करते हैं जो ऑलरेडी मौजूद है। राज का मतलब कुछ छुपा था ना, हिडन था। तो जो ट्रुथ है, जो फैक्ट है, उन फैक्ट्स की फाइंडिंग का नाम साइंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी कैसी साइंस है? सोशियोलॉजी सोशल साइंस है, यानी इंसान का जो बिहेवियर है, ह्यूमन का जो एक बिहेवियर है, एक कलेक्टिव बिहेवियर है, किस तरह से वो एक सोसाइटी में रहता है, उसके अंदर इन्वियस और कोलैबोरेशन है, इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ग्रोइंग नेचर है। तो ये सब उसके बिहेवियर का पार्ट है। तो कलेक्टिव बिहेवियर क्या होगा, सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, तो ये सब ह्यूमन की नेचर, इंसानी फितरत है, उसको स्टडी करते हैं सोशल साइंसेस। सोशियोलॉजी इज द साइंस, विच टाइप ऑफ साइंस? इज द सोशल साइंस। और सोशल साइंस को भी साइंटिफिक मेथड के जरिए स्टडी किया जाएगा। अब साइंटिफिक मेथड हम यूज कर रहे हैं बार बार, तो व्हाट डज इट मीन? साइंटिफिक मेथड से मुराद क्या है? साइंटिफिक मेथड में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट डेटा, collect the data, and then you analyze the data. You will collect the data from the different variant sources, from the website, from the flyer, from the questionnaire, from the meeting, from the interview. You will gather the data, and then will you take some sample of it, और कोई क्वेश्चन रेज करके अपना अपना इशू हाईलाइट एड्रेस करके कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू रिसर्च फॉर इट। फिर आप अपना एक सैम्पल डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, और फिर अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि आप साबित क्या करना चाहते हैं, आपकी रिसर्च के पीछे क्या मकसद छुपा है, आपके इस पूरे डिबेट एंड डिस्कशन का क्या कंक्लूजन है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू ट्राइंग टू नो। दिस इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। ये मेरा क्लेम है, ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है। एंड फाइनली उसकी सपोर्ट में आप प्रेमिसेस ढूंढेंगे, यानी रीजंस ढूंढेंगे। अब वो जो रीज़न है वो फैक्ट्स हो सकते हैं, वो लिटरेचर हो सकता है, कोई कोई आर्टिकल हो सकता है, प्रीवियस थिंकर सोशियोलॉजिस्ट की कोई प्रेजेंटिंग थ्योरी हो सकती है, तो आप उसको रेफर आउट करते हैं। इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, क्योंकि दिस ऑल टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये क्या होता है, ये हम इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसको क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों कहा। So these are the method. I will repeat it again. First, analyze the data, then collect the data, then choose sample design, the research design. After that, formulate the hypothesis, a claim, and finally, literature review are embedded with it to support your claim. So these are the research process. अब आपकी रिसर्च क्या है? For example, if you want to know the causes of suicide, ये आपका प्रॉब्लम है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सुसाइड इन द
सोसाइटी, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जेलिसी है, या फिर महरूमी है, डिप्रावेशन है, या फिर जो है कुछ साइको डिसऑर्डर हैं, सोशियो साइकोपाथ ज़्यादा हमारी सोसाइटी में डेवलप हो गए। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड? ठीक है, क्या कोई सोशल कॉज है, या हम माशरा अच्छा बना नहीं पा रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो स्टेप वन में यू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। सेकंड, रिव्यू द लिटरेचर। तो उससे रिलेटेड आप क्या पढ़ोगे? डिफरेंट बुक्स का रेफरेंस दोगे कि इन ख्यालात आपके जहन में कहाँ से आए, कि जो है ये इसकी वजह, सबब, रीज़न जो है वो क्या है। इस तरह से एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। जो कि क्लेम किया गया था, जो कि दावा किया गया था, क्या वो दुरुस्त है, या आप कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे? आप उसको टेस्टिफाई कैसे करेंगे? एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी एक हाइपोथेसिस में आपने ये पोजीशन ले लेनी है कि व्हाट यू वुड लाइक टू बी प्रूफ, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी नल हाइपोथेसिस उसके अपोजिट हो जाएगा। और जब आप टेस्टिफाई करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा थीसिस जो है वो करेक्ट था, कौन सा थीसिस बिल्कुल गलत था। तो ये साइंस का बहुत आसान है। साइंस ने हमें एक साइंटिफिक अप्रोच दी है। इसी तरीके से हाइपोथेसिस के बाद, जैसे मैंने बताया, रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली रिसर्च पेपर का अटेम्प्ट किया जाता है। और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज, डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा का क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, और फिर जाके हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जिस चीज़ के लिए हमने रिसर्च को स्टार्टअप किया था वो अब तक ऐसा आई गेस नहीं हुआ। कि मैंने आपको सामने ये रिसर्च साइकिल प्रेजेंट की है। ये स्टेप नंबर वन में आप प्रॉब्लम को फिगर आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे, एड्रेस करेंगे। सेकंड पे आप एक थ्योरी बनाएंगे कि आप क्या मानते हैं कैसा हुआ वो। फिर उससे रिलेटेड आप रिव्यू की तरफ चले जाएंगे कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, इससे पहले भी लोगों ने अगर काम किया है स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, कि ये वजह है सोसाइटी, या पॉवर्टी पे काम कर रहे हैं कि पॉवर्टी की वजह क्या है, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या फ़र्क है। तो अब ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं। अब लोगों ने बहुत से आर्टिकल प्रोड्यूस किए होंगे, प्रीवियस सोशोलॉजिस्ट ने, करंट सोशोलॉजिस्ट ने, कोई बुक, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग। तो आप उसको कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिव्यू एग्जिस्टिंग के अलावा फर्दर आप कोई सा एक मेथड इन सारी रिसर्च को हेल्प करते हैं। मेथड चूज करेंगे, जो हमारी करने वाले 5 मेथड होते हैं उसको फॉलो किया जाता है कि कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट है, कौन सा यूजेबल है, और उससे जो डाटा कलेक्ट होता है उसी की बेसिस पर जो है वो डाटा को एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन दिया जाता है। लेकिन रिमेंबर दैट कि जो भी आप लेंगे वो एथिकल होना चाहिए, डाटा में प्रोसेस में अनएथिकल ना हो, डाटा कलेक्ट नहीं हो, मैनिपुलेशन ना हो। और फिर फाइनली एक, जब आप तैयार कर लेते हैं फिर अपने जजमेंट, तो आप रिजल्ट अनाउंस करते हैं, रिजल्ट अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर डिफरेंट मेथड है, इनसे 4 मेथड यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक मेथड है फील्ड मेथड, इसको ऑब्जर्वेशन भी दिया गया कि आप उस माशरे में उतर के आप कल्चर को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप वहाँ के लोगों में घुल मिलकर जाकर देखते हैं, और फिर कुछ रिसर्च फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका है एक्सपेरिमेंट, कि आप लेबॉर्ट्री में ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या क्या कौन से सर्वे। सर्वे में आप डिफरेंट
तो उनके पास जाके उनसे मशवरा सर्वे कराते कुछ नहीं के जरिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों का फीडबैक क्या है, लोग क्या कहते हैं और क्या वाकई जो हम सोच रहे हैं, जो हमने आपको किसी से किया है वो बहू वो वैसा ही है। अच्छा, अगली आप तो अर्काइवल रिसर्च भी कहते हैं कि आपके पास अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, तो आप उसको रेफर करते हैं। इस तरह से आप को बचेंगे, इस तरह से आप जो है वो डेटा को जीए कर लेंगे और एग्जिस्टिंग डेटा को प्रॉपर टाइम की। अच्छा जी, तो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, हमने क्या देखा, सिस्टमैटिक स्टडी करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, और जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये ना हो कि कभी कुछ तुक्के में कुछ नहीं होता। साइंस में रिपीटेटिव होता है और एवरी टाइम वी गेट द सेम रिजल्ट, तभी हम उसको रिसर्च कहते हैं। और साइंटिफिक मेथड में हमने एक बार फिर से एक क्विक रिव्यू हो जाएगा कि साइंटिफिक मेथड में हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर देखेंगे, एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू पुट, व्हाट वी हैव अ क्लेम कि हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट अ रिसर्च डिज़ाइन कि आपका जो सैम्पल डिज़ाइन है वो कैसे होगा, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। अब देखो, डाटा कलेक्ट करने के ये 5 मेथड आपके सामने है, जो कि अभी मैंने आपसे बताया 4 मेथड। सर्वे करते हैं आप, सर्वे में इंटरव्यू हो जाता है, क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं, या खुद जाके आप देखते हैं ऑब्जर्वेशंस फील्ड में जाके। एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या बिहेवियर होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क है आर्काइवल से, वो डाटा कलेक्ट करके उसको लिंक कर देते हैं और फिर कर देते हैं। अच्छा, कंक्लूजन इन्हीं की बेसिस पे निकलेगा और आखिर में आइडिया फर्दर रिसर्च के लिए चला जाएगा, उसकी फ्लॉ, उसके डिफेक्ट, इस तरह की पूरी साइकिल है। साइकिल का मतलब ये है कि फिर ये प्रोसेस दोबारा आगे कंटिन्यू हो जाएगा, जिसके पास जाएगा वो उसको दोबारा पढ़ेगा, प्रॉब्लम हाईलाइट करेगा, रिव्यू करेगा लिटरेचर और फिर पास ऑन करता जाएगा। अच्छा, जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो फिर हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम देखेंगे कि हम क्या है कि भाई सुसाइड करने की वजह इंसान की अपना मेंटल डिसऑर्डर है या सोसाइटी है। तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए कि भाई एक्स फैक्टर है या वाई फैक्टर है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स इंडिपेंडेंट होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और वाई डिपेंडेंट होता है जो एक्स पे लाजिम है कि वो क्या करे, डिपेंड करे। तो एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सर्वे की बात कर लेते हैं। सर्वे को अगर डबल क्लिक करें तो मैंने अभी आपसे कहा कि सर्वे में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें चेकलिस्ट भी करना होता है, कभी प्रॉपर क्वेश्चन करनी होती है, कभी पोल क्रिएट हो जाता है, और कभी डायरेक्ट वन टू वन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिससे आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। तो सर्वे इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर के आपको सैंपल मिलेंगे 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और आपने 25 पार्टिसिपेंट से ले लिया, आपने 100 पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट कर लिया, और फिर आप मेंशन करेंगे कि हेयर आई हैव कलेक्टेड सैंपल डाटा फ्रॉम द 100 पार्टिसिपेंट और मैं इस नतीजे पे पहुंचा। ठीक है, तो क्वेश्चन आयर होता है सर्वे में, इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, फेस टू फेस मीटिंग। और सर्वे के बाद रिसर्च दो तरह की है, क्वांटिटेटिव और जैसे जो बिजनेस रिसर्च होती है वो सब क्वांटिटेटिव है, लेकिन जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की हैं वो क्वालिटेटिव। ठीक है, और जो स्मॉल ग्रुप कम्युनिटीज़, सबका ख्याल रखना पड़ता है किसी एक डिसीजन से। तो ऑब्जर्वेशन में मैंने अभी आपसे बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन में आपकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है और आप खुद से उस ग्रुप को, कम्युनिटी को ऑब्जर्व करते हैं फील्ड में उतर के। उसमें कुछ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि भाई ये रिसर्च पर आए हैं,
ये स्टडी कर रहे हैं और ये लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट जॉइन अ ग्रुप ऑफ पीरियड टू गेट एन एक्यूरेट सेंस ऑफ हाउ इट ऑपरेट, कि ये सब कुछ कैसे होता है, लोग किस तरह से कल्चर बना रहे हैं। और इथनोग्राफी इसी को कहते हैं। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है अबाउट द कल्चर, अबाउट द सोशल सेटिंग टू स्टैंडिंग सिस्टम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इथनोग्राफी यानी आप ऑब्जर्वेशन करके स्टडी को, कल्चर को बहुत बेटरली आंसर कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में आप बहुत मैनिपुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो कहते हैं कि एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत गलत बात है। कंट्रोल ग्रुप नॉट एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, के कंट्रोल है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ऑथर इफेक्ट and intended influence of observer or experiment on subject. So these are the types of experiment to control, uncontrolled. फोर्थ मेथड जिसपे हमने डबल क्लिक करा वो है हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो जैसे कैलेक्टर सर्वे है या स्टेट की तरफ से कोई ऐसी साइट है जिसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स नजर आएंगे, तो उससे डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे जर्नल्स छपते हैं, उनसे डाटा निकाल लिया जाता है। न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहाँ से फैक्ट्स फाइंडिंग हो जाती है। डायरीज हैं, कुछ हिस्टोरिकल वर्क, इससे हमें अंदाज़ा होता है और इसी को कंपाइल करके रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया जाता है और कुछ थ्योरी प्रेजेंट की जाती है। तो ये ऑन ग्राउंड है, ऑन बेसिस है, ना कि ये कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि बेसिक रिसर्च हमने देखी सोशोलॉजिकल, उसमें सर्वे की क्या, हर मेथड, चारों मेथड के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अब सर्वे की बात करें तो ठीक है, तो सर्वे मेथड इज यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ सर्वे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आप चाहते हैं कि पूरे शहर भर से करें तो आप क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जब ऑन अ लार्ज स्केल आप रिसर्च की तरफ जा रहे हैं और सबसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो पोल करना, सर्वे करना जो है वो क्वेश्चन आयर का मेथड ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता है। अच्छा, इंटरव्यू भी है इसमें, मगर ये टाइम अवेलेबिलिटी के साथ है, कितना टाइम है। तो रिसर्चर अक्सर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट भी कर लेते हैं। कभी डाटा अवेलेबल देखते हैं कितना है उनके पास, आंसर कभी एक्यूरेट नहीं मिलते क्वेश्चनिंग के अंदर, तो वो फिर जाके वन टू वन मीटिंग करके इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। और जो रिसर्चर हैं वो सैंपल भी यूज़ करने के, 100 पीपल्स में से हमने 30 का सैंपल डाटा लिया और उसकी बेसिस पे हम ये स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग रिसोर्स में हम तो हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करते हैं कि भाई माजी में अब तक इस टॉपिक को लेके किसने क्या क्या बोला हिस्टोरिकली। और कंटेंट एनालिसिस की बात करें हम, तो उसको एनालाइज किया जाता है कि ये कौन सा वर्ड, कौन सा सिंबल यूज़ किया गया, इसके मीनिंग क्या थे। तो ये सब एग्जिस्टिंग सोर्स आर्काइवल रिसर्च में यूज होता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जिसमें हम बात कर रहे थे फील्ड और ऑब्जर्वेशन की, तो उसमें रिसर्चर जो है वो जो खास ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसको ऑब्जर्व करता है, उनके एक एक बिहेवियर को नोट डाउन करता है, रीडिंग शीट्स बनाते हैं। और अच्छा, जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको कभी वो बता दिया जाता है, कभी ऐसा होता है कि उनको बताए बगैर ही, अनइंटेंशनली भी उनको बताए बगैर उनके ऑब्जर्वेशन को नोटिफाई करा। इस तरह केस स्टडीज होते हैं बहुत सारे, जिससे ऑब्जर्व करके इश्यूज। तो केस स्टडीज बेसिकली इंटेंसिव स्टडी है ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, इवेंट और प्रॉब्लम। किसी भी इवेंट, कोई हादसा, वाकया, उसमें आप सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कोई पहलू देखें और उसको एड्रेस करें, उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये सब ऑब्जर्वेशन के अंडर में आता है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कंडीशन चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, कंट्रोल ग्रुप हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो। कंट्रोल ग्रुप यानी आपको पता हो कि जो जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
और एक्सपेरिमेंट करने वाली टीम भी हमें चाहिए होगी एपेरेटस के साथ, फिर हम कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आते हैं और स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं, उसके लिए मैथ्स यूज़ होती है, उसमें ग्राफ, पाई डायग्राम, प्रेजेंटेशन, जिससे हमें बेहतर पिक्चर क्लियर हो जाती है। और इस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक वेरिएबल यानी दो वेरिएबल्स यानी कि दो फैक्टर्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन देम। तो या फिर एवरेज बेस से कम लिया जाता है, मीन मीडियन मॉड जो है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म। और वीनियस स्टैंडर्ड डिवीजन के ज़रिए तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फार्मूला हैं जिनके ज़रिए हम, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, हम डाटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है जो कंक्लूजन विड्रॉ करती है, उसके बाद में वो डाटा को बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करते हैं जिससे नतीजा निकाल सकते हैं। So that's all about today's lecture. Inshallah, we will meet in the next session.